students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start our new chapter today of class 8, which is chapter number 4 about combustion and fuels. Okay, let's start it. So you see that large number of substances burn in the air with the release of heat and light. Heat is the most important source of energy obtained from fuels. You can even say that fire is the basis of modern development, but after the discovery of oxygen, Antoine Lavoisier explained that fire was a result of a chemical reaction between a burning substance and oxygen. So student, what we see is कि एक large number of substances हैं जो air में burn होते हैं and burn होने के बाद they release a large amount of heat and light. Heat एक बहुत important source है energy का जो हमें fuel से obtain होती है and we can even say कि fire क्या है सभी modern development का एक basis है, लेकिन oxygen के discovery के बाद एंटोनी लेवोज़ियर ने explain किया कि fire क्या एक chemical reaction का result है जो किसी भी burning substance and oxygen के बीच में होता है. So 3 things needed to carry on the process of burning. अब basically 3 things हैं जो कि हम एक burning process को carry on करने के लिए required होती हैं. That is combustible substance. Okay, एक combustible substance चाहिए यानी कि कैसा substance जो कि burn कर सकता है. Secondly, we require oxygen and third we need heat. Absence of any one of these things will put out fire. And अगर इनमें से कोई भी एक substance absent है तो उससे जो fire है that will put out. Now next we have combustion. Combustion is an exothermic process. It is a chemical process of burning of substances with the evolution of heat and light. Since most of the fuels are made up of hydrocarbons which release carbon dioxide and water and burning inadequate supply of oxygen. So combustion क्या है? Combustion एक exothermic process है. That means what? ये एक ऐसा chemical process है जहाँ पे substances को burn किया जाता है and उसमें heat and light का evolution होता है. क्योंकि सारे यानी कि मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स ऐसे हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से बने हुए, दैट मीन्स व्हाट कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करते हैं व्हेन वी बर्न देम इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल मीथेन, जब मीथेन को हम एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर में क्या बर्न करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एंड दिस इज कॉल्ड कंप्लीट combustion. For example, CH4 इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, it will produce CO2 plus H2O, that is carbon dioxide plus water. Next, but when methane is burnt is short supply of oxygen. लेकिन जब हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं लेकिन क्या एक शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, सो मीथेन कंप्लीटली बर्न नहीं होगा जिसे आप इनकम्प्लीट कंबशन कहेंगे. एंड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है. दैट मीन्स CH4 plus oxygen, but what? Inadequate supply of oxygen. Then it will produce carbon dioxide plus water plus energy. Now next we have combustible and non-combustible substances. So the substances which burn on heating with the release of heat and light are known as combustible substances. वो substances जो कि क्या करते हैं heat करने पर which burn यानी कि जब आप उन्हें heat करेंगे ये burn होंगे और burn करने पर ये heat and light energy produce करेंगे, release करेंगे. Such substances are called combustible substances. For example, paper, kerosene, wood, petrol, CNG, LPG, etc. But the substances which do not burn in air or oxygen, लेकिन वो substances जो air and oxygen में burn नहीं होते हैं उन्हें incombustible substances कहा जाता है या non-combustible substances कहा जाता है. For example, sand, soil, cement, glass, water, etc. These all are non-combustible substances. Now the conditions required for combustion. अब combustion के लिए कौन कौन सी conditions required होती है? So basically 3 conditions हैं for the combustion to take place. Number 1 is combustible substance. Second, supporter of combustion, that is oxygen. And third, ignition temperature. First of all, combustible substances. As I told you, the substances which burn on heating and along with that they release a lot of heat and energy. Such substances are called combustible substances. So combustion केवल और केवल एक combustible substance के presence में ही possible है. Secondly, we require supporter of combustion. So एक substance जो कि combustible substance के combustion में helpful होता है उसको supporter of combustion कहा जाता है. Air में mainly oxygen जो है that is the supporter of combustion. Without oxygen यानी कि without oxygen कोई भी combustible object fire catch नहीं कर सकता. आपने देखा होगा चूल्हा जो हमारे commonly होते हैं है ना, उनको rural areas में usually use किया जाता है for cooking food. सो वुड या कोल जो भी इस तरीके के चूल्हा में एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं एंड अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें उन लॉग्स ऑफ वुड को या पीसेस ऑफ कोल को उन चूल्हा के अंदर उन्हें इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो उनके बीच में क्या रहे, एक गैप मेंटेन रहे सो दैट एयर जो है इजीली अंदर अलाउ कर सके, एंटर कर सके एंड चूल्हा जो है या फिर जो फ्यूल है वो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न हो सके. अगर एक गैप्स को क्या लीव नहीं किया जाएगा तो वुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगी
एंड दिस इज अ साइन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी विच इज पॉइजनस। इसीलिए लोगों को एडवाइस भी किया जाता है कि हमें अंगीठी जो है क्लोज रूम में क्या प्लेस नहीं करनी चाहिए, बर्निंग के लिए नहीं रखनी चाहिए वाइल स्लीपिंग, बिकॉज वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी विच इज पॉइजनस एंड इट मे kill the person who are sleeping inside that room. Next is ignition temperature. So ignition temperature is the minimum temperature at which a substance catches fire and starts burning is referred to as ignition temperature or ignition point. वो minimum temperature जिस पे एक substance fire catch कर लेता है and burn होना start करता है, उस minimum temperature को ignition temperature या ignition point बोला जाता है. So different combustible substances का ignition temperature different होता है. वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर या इग्निशन पॉइंट काफ़ी लो होता है उन्हें हाईली कंबस्टिबल और हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है, एंड इन सब्सटेंसेस को एक्स्ट्रा केयर के साथ हैंडल करना चाहिए. फॉर एग्जांपल एलपीजी, पेट्रोल, अल्कोहल, ईदर, बेंजीन. ओके, दीज आर हाईली कंबस्टिबल और हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस एज दे हैव वेरी लो इग्निशन पॉइंट. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक टाइप्स ऑफ कंबशन. कितने टाइप्स ऑफ कंबशन है? मेनली ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 स्पॉन्टेनियस, सेकंड इज रैपिड एंड थर्ड इज स्लो कंबशन. Okay, so first of all, we are going to discuss about spontaneous combustion. So sometimes combustion starts without igniting a combustible substance. अब कभी क्या होता है, कभी कभी कि combustion किसी भी combustible substance को ignite किए बिना ही क्या burn करना start कर देता है. इस combustion को spontaneous combustion कहा जाता है. So ये usually कब होता है? उन combustible substances के साथ होता है जिनका ignition temperature room temperature से भी लो है. Okay, for example, a ribbon of phosphorus. एक जो फोस्फोरस का रिबन होता है वो फायर को कैसे ही कैच कर लेगा अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाओगे, एज सून एज इट विल कैच द फायर. फॉरेस्ट फायर भी एक एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस कंबशन का. देन नेक्स्ट वी हैव रैपिड कंबशन. ओके, सो रैपिड कंबशन क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग एज सून एज इट इज इग्निटेड एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, दिस कंबशन इज रेफर्ड टू एज रैपिड कंबशन. सो एक सब्सटेंस जिसको जब हम क्या उसके पास उसको इग्नाइट करेंगे, बेसिकली जिस सब्सटेंस को इग्नाइट करने पे वो बर्न करना स्टार्ट करता है एंड एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको रैपिड कंबशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल एलपीजी, पेट्रोल, पेपर, कैरोसिन, इन सभी का जो बर्निंग है, कंबशन है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन. नेक्स्ट वी हैव स्लो कंबशन. सो स्लो कंबशन के नेम से सजेस्ट किया जा सकता है कि एक स्लो कंबशन प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी इग्निशन या एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इस प्रोसेस के अंदर काफी लिटिल हीट प्रोड्यूस होती है एंड देयर इज नो लाइट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस कंबशन. For example, oxidation of food in the body, rusting of iron, etc. So, respiration process के during भी जो food है हमारी body के अंदर वो burn होता है, oxidize होता है to produce heat energy and carbon dioxide gas. You can see this is C6H12O6 glucose which is present in our food, and then in the presence of oxygen it gets burned and produces carbon dioxide plus water plus heat. This is the respiration process. Now next we have the topic flame. So what have you noticed in most fires? The answer is obviously flame. You must have also noticed that some substances burn with flame whereas some do not give any flame. So आपने क्या notice किया है most of the fires में? That is flame, obviously. Okay, तो ये क्या होता है जब हम किसी substances को burn करते हैं तो बहुत सारे ऐसे substances हैं जो कि flame के साथ burn करते हैं and कुछ ऐसे substances हैं जो कि flame produce नहीं करते हैं. Okay, चलो. So do you know why actually substances जो vaporize होते हैं केवल वही फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे while burning. For example, LPG, wax, oil, etc. So flame is a zone of combustion of gaseous substances with the evolution of heat and light. Flame क्या है? एक zone है gaseous substances के combustion का जहाँ पे heat and light evolve होती है. जैसे कि for example, when a candle burns, जब एक candle burn होती है तो जो hot molten है वो wick के अंदर वो rise up होता है and vaporize हो जाता है. And जो wax vapor है वो oxygen के साथ combine होकर heat and light produce करते हैं. So when a substance burns a sufficient supply of air, अब जब एक substance sufficient supply of air में burn होता है, एक complete combustion वहाँ पे होता है and वो substance एक non-luminous flame को produce करता है. लेकिन insufficient supply of oxygen में एक yellow flame obtain होती है because of the glowing of unburned carbon atoms. Okay? For example, when wood और charcoal, अगर आप wood और charcoal को ignite करेंगे तो वहाँ पे जो volatile substances हैं वो vaporize होंगे and एक flame के साथ बर्न होना स्टार्ट करेंगे इन द बिगिनिंग. व्हेन अ कैंडल और अ मैस्टिक, जब एक कैंडल या मैस्टिक को लिट किया जाता है तो जो फ्लेम में से हीट है वो उस वैक्स को मेल्ट कर देती है एंड मोल्टन वैक्स वेपराइज होती है एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बर्न होती है.
इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ द कैंडल, अगर आप एक कैंडल की फ्लेम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंट कलर जोन्स उस फ्लेम में देखने को मिलते हैं एंड इन डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं. अब इन डिफरेंट कलर्स एंड हीट जोन के बेसिस पे हम फ्लेम को कुछ फॉलोइंग जोन्स में डिवाइड करेंगे. नंबर 1 नॉन ल्यूमिनस जोन, दैट इज कंप्लीट कंबशन. Luminous zone, incomplete combustion. Dark zone, no combustion. And the fourth is blue zone. Okay, you can see in this picture also, this is a structure of a candle flame. In this part is the blue zone. This is dark zone, which is of black color. Luminous zone, which is of yellow color. And non-luminous zone, which is of blue color. So this non-luminous zone is the hottest part. Luminous zone is moderately hot. And this dark zone is least hot. Okay, let's see. So first of all, non-luminous zone. So ये हमारे फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन होता है जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है. हमारी कैंडल फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है नॉन ल्यूमिनस जोन, विच इज ऑफ ब्लू कलर. एंड सिंस दिस पार्ट गेट्स सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इस पार्ट में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जाती है, जितने भी एटम्स है कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड के, वो फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. Then next we have luminous zone. Luminous zone आपका incomplete combustion का एरिया है एंड inadequate supply of oxygen की वजह से ये जोन incompletely burn होता है एंड कार्बन पार्टिकल्स ग्लो करते हैं with yellow light. Then third we have dark zone. Dark zone में कोई भी combustion नहीं होता है. ये क्या करता है? It converts the area surrounding the wick containing unburnt vapors produced by the melting of wicks. अब वैक्स के मेल्टिंग की वजह से जो अनबर्nt वेपर्स प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, एंड वो अनबर्न्ड वेपर्स हमारी विक के उस एरिया को सराउंड कर लेते हैं. उसी एरिया को या उसी अनबर्न्ड वेपर्स को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एयर इस एरिया में एंटर नहीं कर पाती है तो गैसेस जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आती एंड ये जो जोन है इसलिए इसको डार्क जोन कहा जाता है. ओके, चल नेक्स्ट इज ब्लू जोन. ब्लू जोन क्या है? द स्मॉल रीजन एट द बेस ऑफ द विक. विक के बेस पे जो स्मॉल सा रीजन है उसको ब्लू जोन कहा जाता है. इस जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होती है विद ब्लू कलर. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फ्यूल. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कंजर्व्ड. अब क्या है, एक लाइन यहाँ पे लिखे स्टेटमेंट कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल और केवल आप इसे क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी. ठीक है, आपको सन से जो एनर्जी मिलती है वो हीट एंड लाइट के फॉर्म में मिलती है एंड ये डिफरेंट सोर्सेज में स्टोर हो जाती है जिसको हम एवरीडे बेसिस पे यूज करते हैं. सो एनी सब्सटेंस दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इज नोन एज फ्यूल. अब कोई भी सब्सटेंस जिसको आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बर्न कर रहे हैं, ठीक है, जिस सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बर्न किया जाएगा उस सब्सटेंस को फ्यूल कहा जाता है. फ्यूल कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी. अब फ्यूल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि उनके केमिकल बॉन्ड्स यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से मिलकर वो फ्यूल बना है उनके केमिकल बॉन्ड्स के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है जो कि लॉक रहती है. और जब इन मटेरियल्स को बर्न किया जाता है तो एक लार्ज पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रिलीज होता है एज हीट एंड इसी हीट एनर्जी को यूज किया जाता है टू रन मशीन्स. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. अब एक अच्छे फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो गुड फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. ओके, सो एक अच्छे फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफी हाई होनी चाहिए. ओके, इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग. एक फ्यूल जो अच्छा होगा वो बर्निंग पे क्या नहीं करेगा, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा. मिनिमम पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज होगी. इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल. एक फ्यूल को चीप एंड रेडिली अवेलेबल होना चाहिए. इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल होना चाहिए. उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए एंड इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग. यानी कि एक अच्छा फ्यूल जो होगा वो बर्न करने के बाद कोई भी रेसिड्यू भी लेफ्ट ओवर नहीं बचाएगा एंड वो एक मॉडरेट रेट पे बर्न होगा. See, they have given you the calorific value of some common fuel like charcoal. Charcoal आपका 31.5 किलोजूल पर ग्राम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. बायोगैस 35 to 40, केरोसिन 48, पेट्रोल 48, ब्यूटेन 50, मीथेन 55, हाइड्रोजन गैस 150, wood 16.7 and coal is 25 to 33 kilojoule per gram. Now types of fuel. So we already know about various types of fuel जैसे कि okay, so हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो फ्यूल्स को नंबर ऑफ वेज में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज फिजिकल स्टेट एंड अकरेंस. सबसे पहले फिजिकल स्टेट्स पे हम डिस्कस करते हैं. तो फ्यूल्स को अगर आप फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे सो दे आर ऑफ 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड क्या है? सो कुछ फ्यूल्स है जो हमें सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन होते हैं लाइक वुड, कोल, कैटल डंग केक्स, बायोगैस, दैट इज द रिमेन्स ऑफ शुगर केन आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस. ठीक है,
charcoal, paraffin, wax, etc. These all are the solid fuels as they are obtained in solid state. Next we have liquid. So कुछ liquid fuels भी हैं like kerosene oil, petrol, diesel, alcohol, liquefied hydrogen, etc. Then gaseous fuel. So कुछ gaseous fuels हैं like natural gas, liquefied petroleum gas, LPG, petrol gas, gobar gas, coal gas, water gas, acetylene, hydrogen gas, etc. Next we have occurrence. So अब fuels के occurrence के basis पे भी हम उन्हें group कर सकते हैं into natural fuels and processed fuels. So natural fuels क्या है? The fuels which are used in the form of which they occur in nature. वो fuels जिनको सिर्फ उसी तरीके से यानी कि जिस occurrence में या जिस तरीके से वो हमारे नेचर में अकर होंगे उन्हें उसी तरीके से सिमिलरली यूज कर लिया जाता है. उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या उनको सिंप्लीफाई नहीं किया जाता, प्रोसेस नहीं किया जाता. जैसे वो हमें नेचर से मिले सेम उसी वे में आप उन्हें यूज करते हो. उन फ्यूल्स को नेचुरल फ्यूल्स या प्राइमरी फ्यूल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कैटल डंग, बेगेस, एग्रीकल्चर वेस्टेज, these obtained from crops, etc. These all are natural fuels. Next we have processed fuels. So कुछ natural fuels हैं जिनको एक long physical and chemical process के बाद use किया जाता है and इन fuels को इसीलिए processed fuel और secondary fuels कहते हैं. For example, charcoal, coke, petrol, diesel, kerosene, water gas, coal gas, these all are processed or secondary fuels. Now next we have the topic fossil fuels. So millions of years ago, large number of plants and animals थे जो कि deep under the earth surface क्या हो गए थे, buried हो गए थे due to earthquake and volcanic eruption. And उस टाइम पे land जो थी वो swamp से covered थी, filled with microorganism, marine organism, trees, ferns and other plants. Okay, so जैसे जैसे organisms और plants die होते गए वो उन swamp के bottom में sink हो गए, डूब गए, oceans में नीचे डूब गए. एंड उन्होंने एक लेयर बना ली स्पॉन्जी मटेरियल को जिसको क्या कहा जाता है, पीट. एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये पीट क्या सैंड, क्ले, बाकी सब मिनरल्स के थ्रू ऊपर से कवर होती चली गई जिससे उस पीट को सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट कर दिया. एंड ओवर द टाइम डिफरेंट टाइप्स के फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड हुए डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट. सो मेजरली 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है. नंबर 1 कोल, जिसको हम फर्न से, प्लांट एंड ट्रीज से ऑब्टेन करते हैं जो कि हार्ड हो गए ड्यू टू प्रेशर एंड हीट. सेकंड इज ऑयल, जो हमें स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से मिलता है लाइक जू प्लैंक्टन एंड एल्गी. इंटेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर ने इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर दिया, डिकम्पोज करके ऑयल में भी कन्वर्ट कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. पेट्रोलियम का एक डार्क ऑयली लिक्विड है. ये वेरियस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है जिसको एक्सटेंसिव रिफाइनिंग की जरूरत होती है. अब पेट्रोलियम के इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो सेपरेट किया जाता है एक टेक्निक के थ्रू, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो वो कंपोनेंट्स जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं उनको फ्रैक्शन कहा जाता है. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे इन फ्रैक्शंस को आप सेपरेट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग. ओके, चलो. सो नेचुरल गैस अंडरगोज द सेम प्रोसेस. तो नेचुरल गैस को भी सेम प्रोसेस के थ्रू क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि आप पेट्रोलियम को करते हो. However, जो प्रोसेस है काफ़ी लॉन्गर है एंड सब्जेक्ट टू हायर अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर. लेकिन जब आप नेचुरल गैस को प्रोसेस करते हैं वो थोड़ा लॉन्गर प्रोसेस है एंड इसके अंदर ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से फर्दर डिकम्पोजिशन होकर नेचुरल गैस ऑब्टेन करी जाती है एज अ फ्यूल. ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई होप द चैप्टर वाज वेरी क्लियर टू यू. लेट्स मीट वेरी सून. टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स टू एवरीवन.